بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ یوٹیوب اور فیس بک چینل دیکھ رہے ہیں، میں رانا عزیر ہوں۔ ناظرین کرام، آج پاکستان کی سیاست کا فیصلہ کن وقت شروع ہو چکا ہے، اور یہ الیکشن جو آج ضمنی انتخاب ہو رہا ہے، جہاں پر 8 حلقوں میں عمران خان صاحب خود مد مقابل ہیں، یعنی کہ 1 ورسز آل، پوری پی ڈی ایم ایک طرف ہے اور عمران خان اکیلا ان کے خلاف ایک الیکشن لڑ رہا ہے۔ تو آج سب کچھ کرسٹل کلیئر ہو جائے گا کہ اسٹیبلشمنٹ اس ملک کے ساتھ چاہتی کیا ہے۔ تو بڑی خبریں لے کر آپ کی خدمت میں آج حاضر ہوا ہوں، جس نے اس وقت پاکستان کی سیاست میں بڑا بھونچال مچایا ہوا ہے۔ اور آج کی جو سب سے بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ عمران خان کو چاروں اطراف سے گھیر لیا گیا ہے، اور اب کی بار ایسا حملہ ہوا ہے پاکستان کی طاقتور شخصیت کی جانب سے کہ عمران خان کو نکلنے کی جگہ نہیں مل رہی۔ اور جب بیک ڈور چینلز پر بھی معاملات طے ہو رہے تھے، تو اس وقت میں پاکستان کا واحد صحافی تھا، یوٹیوبر تھا، جو یہ بات کر رہا تھا، جو یہ خبر دے رہا تھا کہ جناب عمران خان کو پنڈی پلان کے تحت ٹریپ کیا جا رہا ہے، ان ملاقاتوں میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، صرف عمران خان صاحب کے ساتھ منافقت کی جا رہی ہے۔ تو اب جو خبر سامنے آئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ملک کے ساتھ یا آگ سے کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور کپتان کی ایک اور طاقتور شخصیت کے ساتھ ملاقات سامنے آئی ہے۔ طاقتور حلقوں کے حوالے سے جو خبریں اس وقت چل رہی ہیں، اس حوالے سے ایکسکلوزیو ڈیٹیلز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے کہ جنرل باجوہ چاہتے کیا ہیں، اور عمران خان کو ان کے خطرناک پلانز کے بارے میں معلومات کیسے حاصل ہوئیں، کیا پلانز تھے اسٹیبلشمنٹ کے، اور اب عمران خان صاحب نے بھی آلٹرنیٹو یعنی کہ پنڈی پلان جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، اس پلان کے خلاف طبلِ جنگ بجا کے رکھ دیا ہے۔ اور اگر ایسا کہوں کہ کپتان نے طاقتور حلقوں کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، تو یہ کہنا بھی بالکل غلط نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جانب سے ایک بہت بڑا اعلان سامنے آیا ہے، اس کی ٹائمنگ آپ نے دیکھ لی، بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اس وقت جی ایچ کیو میں کیا چل رہا ہے، اور بنی گالا کے حوالے سے بڑی ایکسکلوزیو خبر سامنے آ رہی ہے کہ بنی گالا کو بھی گھراؤ میں لے لیا گیا ہے۔ اس حوالے سے تمام تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھ رہی ہیں۔ تیسری خبر پر جو آج ہم بات کریں گے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے جو پاکستان کے حوالے سے بیان دیا تھا، جوہری پروگرام کے حوالے سے جو ان کی خطرناک سٹیٹمنٹ تھی، اس نے خوفناک شکل اختیار کر لی ہے۔ وہ بیان کی جو کانسیکوینسز ہیں، اس نے پاکستان کو ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ناظرین امپورٹڈ حکومت نے عمران خان کے خلاف امریکہ سے ایک اور مدد مانگ لی ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد۔ لیکن اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں، آنے والی اپڈیٹس آپ کی خدمت میں بر وقت پیش ہوتی رہیں۔ ناظرین اس وقت جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں، پولنگ کا عمل شروع ہے، اور 5 بجے یہ وقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور پھر نتائج کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن اس ضمنی انتخاب کی خوبصورتی یہ ہے کہ پاکستان کے تمام چور چکے ڈاکو، یہ پورا نظام ایک طرف ہے، پوری حکومت ایک طرف ہے، اور اکیلا کپتان ان کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہا ہے۔ حکومت اور اس کے ہینڈلرز نے دھاندلی کے منصوبے بھی رات کے تیار کیے، اور میں نے کل بھی آپ کو یہ خبر دی تھی کہ بھرپور دھاندلی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور اسی حوالے سے اب جو خبر سامنے آ رہی ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے جو ووٹرز ہیں، ان کا نام حلقوں سے غائب ہے، اور کچھ جو ووٹرز ہیں اپنا ویڈیو پیغام بھی ریکارڈ کر کے ٹویٹر پر چلا رہے ہیں۔ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جو 2013 میں اور 2018 میں جہاں پر میں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، اب وہاں پر جب ہم ووٹ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں تو ہمارا نام وہاں پر درج نہیں ہے، یعنی کہ پی ٹی آئی کے ووٹرز جو ہیں ان کا نام نکال کر، ان کا نام ختم کر کے ان کی ووٹوں کی تعداد کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تاکہ ووٹ کم کاسٹ ہوں اور ٹرن آؤٹ کم ہو، ہم دھاندلی زیادہ کریں اور پاکستان تحریک انصاف کو یہاں پر بڑا دھچکا دیا جائے۔ تو سندھ کا جو حلقہ ہے این 237، وہاں پر دھاندلی بے نقاب کرنے پر پی ٹی آئی کراچی کے جو بلال غفار صاحب ہیں، ان کا جناب پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے، ان کے کارکنان کی جانب سے سر پھاڑ دیا گیا ہے، اور وہاں پر ان کو بڑی شدید چوٹیں آئی ہیں، اور پورے پولنگ سٹیشنز کا گھراؤ کیا گیا۔ جو وہاں کا عملہ ہے اس پر بھی حملے جاری ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے۔ تو یہ دھاندلی کی جو کوشش کی جا رہی ہے، اور انہیں یہ پوری طرح سے ناظرین کرام جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی ہیں اور مسٹر زیڈ بھی اس میں شامل ہیں، ان 3 لوگوں نے جناب رات کے کچھ پلانز اور موسمہ بندیاں تیار کی تھیں، اوور ٹائم لگایا گیا، اور رانا ثناء اللہ بھی رات کو کل اپنی پولنگ کے حوالے سے کیمپین کر رہے تھے، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ خاموش ہے، کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نہیں بلکہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ پولنگ سٹیشن کے اندر اسپیشل برانچ کے لوگ بیٹھے
हुए हैं। तो ये बड़ा पाकिस्तान के इदारों के ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि स्पेशल ब्रांच के लोग वहां पर क्या कर रहे हैं। नामालूम अफराद की एंट्रियां हो रही हैं जिसने इस वक्त बड़ी हलचल मचाई हुई है। और जो NA-237 का हल्का है, जमील अहमद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साबिक MNA हैं, उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल शुरू कर दिया है और कुछ हलकों में खुलेआम धांधली भी की जा रही है। तो इस सब के बाद अगर इमरान खान साहब को धांधली के जरिए हरवाया जाता है तो जनाब-ए-मन इमरान खान जो है वो रात को पूरे मुल्क में एहतजाज की कॉल दे सकते हैं। इसके लिए आपने आज तैयार भी रहना है। और बनी गाला में इसी हवाले से रेंजर्स जो है वो पहुंचना शुरू हो चुकी है। ये सवाल भी खड़ा होता है कि रेंजर्स वहां पर क्या करने गई है और धांधली एक जानिब शुरू हो चुकी है और दूसरी जानिब बनी गाला में रेंजर्स का पहुंचना यह साबित करता है कि अगर इमरान खान साहब आज एहतजाज की कॉल देते हैं तो आज इमरान खान को गिरफ्तार या उनको नजरबंद कर दिया जा सकता है बनी गाला के अंदर। यह एक खौफनाक सूरत जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है। अब आ जाए कि जो अमेरिकी सदर जो बाइडन ने कल बयान दिया कि पाकिस्तान के जो जौहरी असासे हैं वो बेकायदा हैं, इसको कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि पाकिस्तान की जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके ऊपर बहुत बड़ा हमला किया गया। तो सबके बाद इंपोर्टेड हुकूमत ने अमेरिका से मदद मांगी है, वो अमेरिका से मदद इमरान खान साहब के खिलाफ मांगी गई है। लेकिन हमारे DGI-SPR जिसको बड़ा गुस्सा आता है, वो बड़ा गुस्से से भरा हुआ शख्स है, नंगा करके पाकिस्तान की रवायत जो है वो बनाई जा रही है कि नंगा करके मारा जाता है। एक हमारे बाप दादों की उम्र का जनाब वो डट कर खड़ा हो गया आजम सवाती, उसने कहा देख लेंगे इन सबको, जानकर नजराना भी पेश कर देंगे। DGI-SPR की मुजरिमाना तौर पर खामोशी इस बात को साबित करती है कि हम अमेरिका के सामने लेट चुके हैं और हमारी फॉरेन पॉलिसी में एक नया शिफ्ट आया है जिसमें हमने अमेरिका की खुशनुदी के मुताबिक अपनी फॉरेन पॉलिसी को तब्दील कर दिया है, जो कि इमरान खान साहब नहीं कर रहे थे। तो अब डॉन लीक्स और मेमो गेट स्कैंडल की तरह अमेरिका से एक और मदद मांग ली गई है कि हमें किसी ना किसी तरीके से इमरान खान से बचा लिया जाए। तो अब अमेरिका जो है वो ज़ाहिर है इस मैदान के अंदर तो कूदेगा। इसहाक डार साहब भी वाशिंगटन के अंदर मौजूद हैं, मामला तय हो रहे हैं, लेकिन खबरें तो यही बताती हैं कि कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा। और इस सब के बाद पाकिस्तान के हवाले से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के ख़तरनाक दुराहे पर पहुँच चुका है, पाकिस्तान की मईशत जो है वो कभी भी दिवालिया हो सकती है। तो इस सब के बाद अब जो अमेरिका से मदद मांगी जा रही है तो जाहिर है इसके बदले अमेरिका अपनी शराइत भी रखेगा। और अगर ये अमेरिका से मदद मांगी जा रही है तो जनरल बाजवा भी 7 रोज़ा दौरा मुकम्मल कर चुके हैं अमेरिका का, और ये साबित करता है कि पाकिस्तान के इदारे भी इसके अंदर शामिल हैं, पाकिस्तान के इदारों के रजामंदी के साथ ये सब कुछ हो रहा है। तो अगर अमेरिका मदद कर देता है इमरान खान के खिलाफ रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद एक और साजिश होती है तो अमेरिका की शराइत क्या होंगी? सबसे पहली शराइत तो ये होगी कि जनाब पाकिस्तान जो है वो इसराइल को तस्लीम कर ले, जो इमरान खान के ऊपर भी प्रेशर डाला जा रहा था। दूसरी शराइत ये होगी कि पाकिस्तान की जो मैशत है वो तो दिवालिया हो रही है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो, पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट होने के खतरे पर पहुंच चुका है, तो पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम मांगे जाएंगे, पाकिस्तान के एटमी असासे मांगे जाएंगे। तो इस सब के बाद नाज़रीन इकराम आप आ जाएं कि इमरान खान को जो पिंडी प्लान के तहत चारों तरफ से घेर लिया गया है, और अगर यूं कहूं कि जनरल बाजवा का एक और हमला हुआ है इमरान खान साहब पर, तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस्टेब्लिशमेंट ने आग से खेलने का फैसला कर लिया है। तो नाज़रीन इकराम इमरान खान साहब को बेतहाशा बार धोखा दिया गया। 25 मई को जब इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए उस वक्त भी धोखा दिया गया, उस वक्त भी ये ताकतवर हलकों ने इमरान खान साहब को कहा कि आप वापस चले जाएं, हम इलेक्शन का ऐलान करवा देंगे। तो अब तक 6 महीने गुजर चुके हैं, इलेक्शन का ऐलान नहीं हुआ। और फिर 3 मुलाकातें भी सामने आई इमरान खान और जनरल बाजवा की। एक मुलाकात में तो मैंने आपको ये खबर दी थी कि जनरल बाजवा ने मुबैना तौर पर इमरान खान के साथ बराह रास्त इलेक्शन का वादा कर लिया है, लेकिन उन वादों के खिलाफ भी वर्जी की गई। और फिर 3 चैनल्स ऐसे थे जिनके जरिए इमरान खान साहब को पैगाम दिया गया कि 2 दिन का वक्त है, 3 दिन का वक्त है, आप थोड़ा सब्र कर लें। और ये इस तरह का वक्त लिया जा रहा था, इमरान खान को प्रोलॉन्ग किया जा रहा था, उनके जलसे धरनों को प्रोलॉन्ग किया जा रहा था और उनको धोखा दिया जा रहा था। अब नाज़रीन इकराम एक और जो मामला हुआ है, इमरान खान साहब को यह बताया गया कि जनाब आपको घेर लिया गया है, आपको ठंडा भी रखा जा रहा है, आप जो बयानात देते रहे उनकी आग बुझाने के लिए आपके ऊपर ये पानी फेंका गया है। यानी कि पिंडी प्लान के तहत, जो मैंने आपको बताया था कि जो पिंडी प्लान है उसके तहत तो मार्च और अप्रैल से पहले किसी सूरत भी पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो अब जो शहर इक़्तिदार में खबरें गूंज रही हैं कि इमरान खान ताकतवर शख्सियत की एक और मुलाकात
हुई है, यानी कि एक दफ़ा फिर से इमरान खान साहब को ट्रैप करने की कोशिश की गई है। तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो मार्च से पहले तो इलेक्शन नहीं होते, तो जनरल बाजवा जो हैं विकेट की दोनों जानिब खेल रहे हैं। तो अगर इलेक्शन हो जाता है तो जनाब मन पाकिस्तान में जो नए आर्मी चीफ की तैनाती है वो रुक जाएगी और अगले आने वाली हुकूमत जो है वो उसकी तैनाती करेगी। इमरान खान को निकाला ही इसी वजह से गया था कि वो नए आर्मी चीफ की तैनाती ना कर सकें। ये खुर्रम दस्तगीर का बयान जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है। और फिर अगर इलेक्शन नहीं होते तो फिर क्या होगा, ये भी बड़ा अहम सवाल है। तो क्या जनरल बाजवा जो है वो दोबारा इमरान खान साहब को लेकर आएंगे अगर इलेक्शन हो जाते हैं, जिनको इस वजह से निकाला गया था कि जनाब इमरान खान साहब जो है वो डिक्टेशन नहीं लेते थे, अपनी मर्जी का आर्मी चीफ लगाना चाहते थे, वो उस हवाले से भी प्रेशर नहीं ले रहे थे क्योंकि ये वज़ीर-ए-आज़म का इस्तेहकाक है। तो इस खौफ से इमरान खान को रजीम चेंज ऑपरेशन के तहत निकाल दिया गया था। और इस सब के बाद अब जो एक और मुलाकात हुई है वो भी जनाब ट्रैपिंग मुलाकात थी। और उस सब के बाद अक्टूबर में ही इमरान खान साहब ने कहा कि सब कुछ होगा, लॉन्ग मार्च का ऐलान या फिर इलेक्शन का ऐलान, और पिंडी प्लान तो के हवाले से तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। तो नाज़रीन किराम, इमरान खान साहब ने जो पलट कर वार किया है और वो वार जो है वो इंतहाई खतरनाक है। और उस हवाले से आज खान साहब ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान किया कि जनाब हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च जो है वो तब ही रुकेगा जब पाकिस्तान में इलेक्शन होंगे। खान साहब ने कहा कि जनाब हुकूमत मुखालिफ लॉन्ग मार्च जो है वो अक्टूबर में ही होगा, अक्टूबर में ही फैसला होगा कि इलेक्शन करवाएं या लॉन्ग मार्च करवाएं। अगर ये इलेक्शन का ऐलान कर देते हैं तो मैं लॉन्ग मार्च नहीं करूंगा। और इमरान खान ने कहा कि मैं जो प्लान कर रहा हूं उसकी मनसूबाबंदी अभी तक सिर्फ मुझ तक ही महदूद है क्योंकि मेरी हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। फिर इमरान खान साहब ने जो इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद 100% लॉन्ग मार्च होगा, यानी कि ज़िमनी इलेक्शन के साथ ये लॉन्ग मार्च जो है वो जुड़ चुका है। लॉन्ग मार्च होगा और अक्टूबर में ही होगा। मुझे पता है ये लोग क्या कर रहे हैं, इसलिए मैंने पूरी तैयारी कर रखी है। अब हम वो प्लानिंग कर रहे हैं कि ये हमें नहीं रोक सकते, यानी कि इमरान खान जो है वो ऐसी प्लानिंग के साथ मैदान में उतर रहे हैं कि फिर गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। और इमरान खान ने कहा कि लॉन्ग मार्च के बारे में किसी को नहीं पता, अवाम में बड़ा शऊर देख रहा हूँ, बहुत ज़्यादा अवाम बाहर निकलेगी, जब मैं समझूंगा तैयारी मुकम्मल है कॉल का ऐलान कर दूंगा। लॉन्ग मार्च के लिए एक दिन का वक्त भी दे सकता हूँ। तो ये एक बहुत बड़ी इस वक्त पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा हो सकता है। इमरान खान साहब लॉन्ग मार्च करवा सकते हैं और अगर लॉन्ग मार्च आ गया तो पाकिस्तान के बड़े बड़े इदारों के हाथ से गेम निकल जाएगी। तो अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। इस तरह के वीडियोज़ में ख्याल रखना है। अल्लाह के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।